Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is globes and maps. Okay, look at the pictures and write their names. What is this? This is a globe. And what are these? These are world map and this is map of India. Okay, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now the first topic is the earth. The earth is our mother planet. It has all the life supporting elements which are not on other planets. The surface of the earth is divided into land and water. 3/4 of the surface is covered with water. The rest is covered with land. The large water bodies are called oceans and the large land masses are called continents. The earth is round in shape. The astronauts who have taken pictures from space have proved this. However, it looks flat to us as we can see only a very small part of the huge earth. Now what is earth? अर्थ क्या है? अर्थ हमारा मदर प्लेनेट है क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जैसे कि एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर. और जो अर्थ की सरफेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लैंड एंड सेकंड इज वाटर. जो लैंड स्पेस है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. एंड जो वाटर बॉडीज है उसको कहते हैं ओशियंस. एंड जो अर्थ है हमारी वो कैसे लगती है? राउंड लगती है देखने में. जैसे कि जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने जो स्पेस से पिक्चर ली है उससे पता लगता है जैसे ग्लोब में हमें अर्थ हमारी राउंड दिखती है तो अर्थ राउंड दिखती है जो पिक्चर स्पेस से ली गई हैं. लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा जो वो सरफेस है उसका फ्लैटेंड भी है. ओके, नाउ फैक्ट फाइल. The word globe comes from the Latin word globus meaning round mass or sphere. जो word globe है ये किससे लिया गया है? एक Latin word globus से लिया गया है जिसका मतलब क्या है? round mass और sphere. तो एक गोला यानी globus means एक गोला और globe का जो नाम है globus word से लिया गया है. Next is globe. A globe represents the real shape of the earth. It is the true model of the earth. It shows oceans and continents. Different colors are used for showing water bodies and land masses. It also shows the shapes and locations of countries and the locations of important cities. You can only see half the globe at one time. However, you can turn the globe around to see the other half. It can be turned around a line passing through it. The line is called the axis. The axis is not vertical. It is tilted at an angle of 23.5 degree. Now what is globe? Globe जैसे कि जो स्पेस से पिक्चर ली कैसी हमें अर्थ दिखती है? राउंड दिखती है. तो ग्लोब भी क्या है? ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की शेप की. जैसे अर्थ हमें दिखती है तो ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ. एंड जो ग्लोब है हमारा उस पर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं. अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है उनको दिखाने के लिए. जैसे ब्लू कलर से वाटर बॉडीज़ दिखाई गई हैं. अलग अलग कंट्री, उनकी लोकेशन कहाँ है वो बहुत अच्छे से ग्लोब में रिप्रेजेंट किया गया है. अगर हम ग्लोब को स्टडी करते हैं तो हम उसका सिर्फ 1/2 ही देख सकते हैं जो हमें फेस करता है. सेकेंड हाफ देखने के लिए हम ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं और ग्लोब को एक लाइन पास आउट करती है जो कि एक टिल्टेड लाइन है 23.5 डिग्री एंगल पर, जिसको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. ओके, The earth constantly rotates or turns around its axis of rotation. The axis of rotation of the globe is similar to that of the earth. It is also tilted at an angle of 23.5 degree. The axis of the globe has two endpoints. We call these points the poles. The northernmost point on the top of the globe is called the North Pole and the southernmost point on its bottom of the globe is called the South Pole. Midway between the poles is an imaginary line circles the earth. It is called the equator. It divides the earth into two hemispheres. To the north of the equator is called northern hemisphere and to the south of the equator is known as southern hemisphere. Okay, जैसे हम ग्लोब के बारे में जो बात कर रहे हैं, ग्लोब जो है
अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, ऐसे ही अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। जो एक्सिस है उसके जो दो पोल्स में उसको नाम दिया गया है, जो अप पोल्स है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो डाउन पोल है उसको साउथ पोल कहते हैं। एक मिडवे से एक लाइन इक्वेटर जिसको बोलते हैं वो ग्लोब को यानी कि अर्थ को पास आउट करती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं, और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्थ साइड का जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो साउथ साइड का पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नाउ कम टू द मैप्स। तो a globe is a perfect model of the earth and shows the accurate shape, size and locations of various places. It has certain limitations. मैप क्या है? जैसे कि ग्लोब है वो एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, लेकिन उसके बावजूद अर्थ की सारी चीज़ों की एक्यूरेट शेप, साइज, लोकेशन हमें दिखा सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? लाइक अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। एक बड़े ग्लोब को जिस पर स्टडी करना आसान होता है उसको हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। अ ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। ग्लोब क्या है? एक छोटा सा मॉडल होता है, तो उसको किसी भी प्लेस की डिटेलिंग हम उसमें शो नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है पूरे अर्थ का एक मॉडल होता है। अगर हम बात करें अर्थ के किसी पार्ट को लेके हमें ग्लोब बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। वी कैन सी ओनली अ हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब। अगर हम ग्लोब से अर्थ की स्टडी करते हैं तो वन टाइम में हम अर्थ का सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशन, दैट्स वाई नई चीज़ें इन्वेंट हुई जिसको मैप बोला जाता है। मैप पर क्या कर सकते हैं हम? जितने भी ये ग्लोब की लिमिटेशंस हैं सारी मैप्स में कवर हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज मैप? A map is a representation of the earth's surface or part of it on a flat surface. The word map comes from the Latin word mappo, which means a napkin. A Flemish mapmaker, Gregis Mactor, was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book of maps is called an atlas. Okay, now what is map? Map क्या है? Map है representation of the earth surface on a flat surface. एक फ्लैट सरफेस पर हम अगर अर्थ को शो करते हैं तो दैट इज मैप। और जो मैप है ये वर्ड किससे लिया गया है? मैपो वर्ड से, जिसका मतलब है नैपकिन यानी कि फ्लैट सरफेस। और किसने? ग्रेजिस मैक्टर जो है उसने एक फर्स्ट बुक बनाई जिसको क्या कहते हैं? एटलस। एंड व्हाट इज एटलस? अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया एटलस को? ग्रेजिस मैक्टर ने। The map can be drawn showing the whole earth or a continent or a country or a city and even of your school building or a house. Thus, a map is better than a globe. एक मैप पर हम कोई भी अर्थ का कोई भी पार्ट शो कर सकते हैं, कोई भी पार्ट बना सकते हैं, कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी कंट्री या सिटी, इवन हम अपने घर की बिल्डिंग, अपने स्कूल की बिल्डिंग, सब चीज़ें हम मैप पर शो कर सकते हैं। इसीलिए ग्लोब से बेटर है मैप से स्टडी करना। एन एक्यूरेट मैप should have at least 3 qualities. First is true directions between places. एक एक्यूरेट मैप, जो सही मैप होता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक तो ट्रू डायरेक्शंस बिटवीन प्लेसेस होती हैं। जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उनको प्रॉपर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रू शेप ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज़। लैंड एंड वाटर बॉडीज़ की ट्रू शेप होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रू एंड एक्यूरेट एरिया। जिस भी चीज़ का हम मैप बना रहे हैं उसका एक्यूरेट एरिया हम मैप पर शो कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट स्केलिंग के यूज़ करके हम एग्जैक्ट एरिया को हम मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं। However, maps too have limitations. The earth is spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. Try to cover a ball with a sheet of paper without creasing. You will not be able to do it. It is not possible to make an accurate map from a curved surface. However, a map of a small area can be fairly accurate. Thus, a map is more useful to study the earth.
ओके इतने सारे मैप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैप्स में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? जो अर्थ है हमारी वो स्फेरिकल शेप में है, लेकिन कहीं कहीं से कर्व्ड भी है, लेकिन एक कर्व्ड सरफेस को एक फ्लैट सरफेस पे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम किसी बॉल को अगर एक पीस ऑफ पेपर से, शीट ऑफ पेपर से अगर हम उसको कवर करें बिना कहीं से फोल्ड हुए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अर्थ को डिट्टो हम मैप पे नहीं बना सकते हैं। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। Claudius Ptolemy was a Greek mathematician and geographer who lived in Egypt more than 2000 years ago. He created several maps of the world. जिन्होंने बहुत सारे मैप्स बनाए हैं वर्ल्ड के, and he was the mathematician who lived in Egypt more than 2000 years ago. Now there are different kinds of map. टू टाइप के जो मैप हैं मेनली जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सेकंड इज फिजिकल मैप। Now what is political map? Political map shows boundaries, countries, states as well as the location of various national and state capitals and other major cities. जो भी हमारे देश के बारे में, उसकी बाउंड्रीज, उसकी स्टेट कहाँ हैं, उनके बारे में जो शो करता है, कौन सी जगह, कौन सी किस चीज़ की लोकेशन कहाँ है, वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या शो करते हैं? फिजिकल फीचर शो करते हैं। जैसे कि माउंटेन्स का अगर मैप हम बनवाते हैं तो किसके अंडर आएगा? फिजिकल मैप में। प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स and valleys of an area. Maps are also drawn to show the distribution of rainfall, forest, crop, mineral, industries, etc. ये जो मैप हैं ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? फिजिकल मैप की कैटेगरी में। ओके, नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अ मैप? We should learn to read a map in order to make full use of it. There is a specific kind of language associated with the map. There are different symbols, colors and signs to show different things in a map. We should be familiar with the followings. First is title, second is scale, third is directions, fourth is colors and fifth is सिंबल्स। किसी भी मैप को पढ़ने के लिए हमें इन 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल, जो मैप का टाइटल होता है वो बताता है हमें जो ये मैप है उसका किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो ये मैप हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो हमें कहाँ से पता लगता है? टाइटल ऑफ द मैप से। जैसे कि Political map of India with international state and other boundaries of countries, district, etc. अगर हम बात करें उसका टाइटल है, किसी भी मैप का टाइटल है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल मैप में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सी स्टेट्स हैं, बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं। तो ऐसे ही टाइटल से हमें मैप के बारे में पता लगता है। सेकेंड इज स्केल। Scale, a map rarely shows the actual distances between places. अगर हमें कोई प्लेस शो करनी है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है, क्या हम उसको मैप पर शो कर सकते हैं? पीस ऑफ पेपर पर शो कर सकते हैं? नो। तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम एक स्केल का यूज़ करते हैं जो एक्यूरेटली डिस्टेंस को मार्क कर सकता है। जैसे कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज मेजर्ड, इट इज कॉल्ड द ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस। अगर दो जगह के बीच का अगर हम पॉइंट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राउंड डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द मैप मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस क्या हुआ? जैसे कि फिजिकली हमने मेजर किया कि ये चीज़ यहाँ से कितनी दूर है, दैट इज़ ग्राउंड डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है। मैप डिस्टेंस, जो कि हम ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पर शो करते हैं एक स्केल का यूज़ करके, उसको क्या कहते हैं? मैप डिस्टेंस कहते हैं। एंड द स्केल ऑफ द मैप इज़ द एक्चुअल रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। तो स्केल ऑफ द मैप क्या होता है? इज़ द एक्चुअल रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। ओके, तो
तो ये आप देखो जैसे मैप में स्केल का यूज़ करके आपको अलग अलग डायरेक्शंस का यूज़ किया गया है और इसमें स्केलिंग का यूज़ करके अलग अलग स्टेट और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। बट ऑन द मैप इट मे बी शो एज 1 सेंटीमीटर। हेयर इज एग्जाम्पल जहाँ पर आपको ग्राउंड डिस्टेंस और जो मैप डिस्टेंस है उसका एग्जाम्पल समझाया गया है। जैसे कि अगर 100 किलोमीटर है किसी प्लेस का डिस्टेंस, वो 100 किलोमीटर है, तो हम 100 किलोमीटर लंबी शीट नहीं ले सकते हैं, तो हम 100 किलोमीटर को मार्क कर देंगे एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में शो कर देंगे और स्केलिंग में लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अगर हमें 500 किलोमीटर शो करना है तो हम कितना सेंटीमीटर यूज करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर की लाइन यूज करेंगे, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 500 किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से हम जो स्केल का यूज करके हम मैप पर ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। नाउ जो स्केल हम यूज करते हैं डिस्टेंस को शो करने के लिए उसको क्या कहते हैं, लीनियर स्केल। Each division in the bar is 1 centimeter measured on the map and indicates 100 kilometers can be shown in numbers just above the bar on the ground. Linear scale क्या होता है, जो हमने रेशियो बनाई है मैप्स की ग्राउंड और मैप डिस्टेंस में, उसको लीनियर स्केल से मेजर करते हैं। Now come to the next, that is directions. डायरेक्शंस हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। In every map, the north direction will be shown with the help of an arrow pointing upward. The south is at the bottom, the east two are right and the west two are left. Okay? कैसे डायरेक्शन को हम शो करते हैं, this is north, this is south, this is west and this is east direction. तो मैप में भी हम इस तरीके से डायरेक्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कलर्स। कलर्स, अगर आप मैप में देखोगे आपको अलग अलग कलर शो होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक कलर लिए गए हैं फिजिकल फीचर्स दिखाने के लिए। जैसे कि डार्क ब्राउन जो कलर है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, माउंटेन्स के लिए, ओके। एंड येलो कलर है हिल्स एंड प्लेट्यू शो करने के लिए, ग्रीन कलर है प्लेन्स और लो लैंड शो करने के लिए, लाइट ब्लू कलर है शैलो वाटर्स सरफेस शो करने के लिए, डार्क ब्लू है डीप वाटर शो करने के लिए, ओके। तो हर एक कलर जो है वो अलग अलग चीज को सिंबलाइज करता है। अ मैप हैज अ की इन द कॉर्नर कॉल्ड इंडेक्स, इट टेल्स व्हाट ईच कलर और सिंबल स्टैंड्स फॉर। एक मैप जो होता है उसके साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा इंडेक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज सिंबल्स। There is a set of symbols developed to represent some features on the map. We can show physical or cultural features on a map with the help of signs and symbols. We can show features such as temples, mosques, churches, forts, rivers, bridge, lakes, etc. with the help of signs and symbols. Most of these symbols are now used by all countries in the world. Thus, these signs and symbols are called the conventional symbols. मैप पर अलग अलग चीज़ें आप शो कर सकते हो, जैसे टेम्पल शो कर सकते हो, मॉस्क, स्कूल बिल्डिंग, चर्चेस, फोर्ट, रिवर, लेक, हर एक चीज़ का मैप बन सकता है। तो इन चीज़ों को शो करने के लिए कुछ हम इंटरनेशनली सिंबल यूज़ करते हैं जो हर जगह ऑल ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। उन साइंस एंड सिंबल्स को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। नाउ what are latitudes and longitudes? Latitudes क्या होते हैं? They help us to locate a place on the map. The horizontal lines are drawn parallel to the equator. Like the equator, they go around the earth. They are known as latitude or parallel. See, this is the equator. इसके साइड में जो लाइन होती है horizontal line, ये आपकी क्या होती है, ये आपके होते हैं लैटिट्यूड्स और लाइन ऑफ पैरेलल्स। और जो वर्टिकल लाइन होती है, सी दीज आर द वर्टिकल लाइन,
ये वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी, इनको क्या कहते हैं? लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लाइन्स ऑफ मेरिडियंस. Latitudes and longitudes are imaginary line. They are drawn on a globe or a map to show the location of a place. While latitudes are imagined to be drawn from west to east, longitude are imagined to be drawn from north to south. See, latitude जो है ये west to east लोकेट होती हैं एंड जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ लोकेट होती है. ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, ये असलियत में नहीं होती है. ये सिर्फ हमें किसी भी प्लेस को लोकेशन में हेल्प मिल जाए कि उस प्लेस को कहाँ लोकेट करना है, उसकी हेल्प के लिए हमें ये लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन जो है ये ड्रॉ कर रखी है. ओके, नाउ व्हाट आर लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स अभी हमने पढ़ा जो इक्वेटर के साथ साथ जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, दीज आर द लैटिट्यूड्स. इनको मार्क कैसे करते हैं? सी, इक्वेटर पर 0 डिग्री हमने लिया. अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ की तरफ अगर जाते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 90 डिग्री साउथ. इस तरीके से हम लैटिट्यूड्स को मार्क करते हैं. इन लाइन ऑफ लैटिट्यूड में अब 90 इस साइड हो गई, 90 इस साइड, 180 टोटल लैटिट्यूड है हमारे पास. 180 में से कुछ 5 जो लैटिट्यूड हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड माना गया है उनको, जो हमारे किसी भी लोकेशन को लोकेट करने में हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि 0 डिग्री पर जो लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं. 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज आर्कटिक सर्कल. The Tropic of Cancer 23.5 degree north. The Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and the Antarctic Circle at 66.5 degree south. So these are the important latitudes. Now features of latitudes. The lines of latitudes are parallel to one another and they never meet. ये आप देखोगे lines of लैटिट्यूड्स जो हैं ये पैरेलल लाइन होती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी. ये राउंड सर्कल्स होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं. दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट होती हैं. एंड ऑल ऑफ देम फॉर्म कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विच आर जस्ट पॉइंट. और पूरा ये क्या बनाती हैं? एक सर्कल बनाती हैं. किसको छोड़ के? पोल्स को छोड़ के, क्योंकि पोल्स क्या है आपके? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये सिर्फ एक पॉइंट्स हैं, बाकी जो पैरेलल्स हैं वो पूरे कंप्लीट सर्कल बनाती हैं. द लैटिट्यूड्स बिकम स्मॉलर एज दे मूव टुवर्ड द पोल. जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो लैटिट्यूड के जो ये सर्कल हैं क्या होते जाते हैं? ये छोटे होते जाते हैं, स्मॉल होते जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूड्स हैं वर्टिकल लाइन जो कि कितनी है? 360 मेरिडियंस एंड ऑल दीज आर ऑफ एन इक्वल लेंथ. द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. जो जैसे कि इक्वेटर हमारा लाइंस ऑफ पैरेलल्स का मिड पॉइंट होता है, इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री पर वर्टिकल लाइन होती है जो कि इन मेरिडियन को डिवाइड करती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. जैसे कि इक्वेटर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को, इस तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन आएंगी उनको क्या कहेंगे? वेस्ट लॉन्गिट्यूड. और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइन आएंगी उनको कहेंगे हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड. 0 to 180 डिग्री आपकी वेस्ट में आती हैं एंड 0 to 180 डिग्री ईस्ट ये आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती हैं. ओके, एंड the 180 degree east and 180 degree west longitude meet and form a single line on the opposite side of the world called the 180 degree longitude. This line is also called the international date line. और जो आपकी 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो मिलके एक लाइन में फिनिश हो जाता है, तो
उसको क्या कहते हैं, उस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन। द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन एज इट पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। जो प्राइम मेरिडियन है उसको और क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से पास आउट करता है, ग्रीनविच जो कि लंदन में है वहाँ से पास आउट करता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। नाउ द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस हेल्प अस टू नो द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता लगता है, लॉन्गिट्यूड से हमें उस प्लेस का लोकल टाइम क्या है वो पता लगता है। नाउ फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूड, all the meridians are of the same length and they run from one pole to other। जितने भी मेरिडियंस हैं वो सारे सेम लेंथ के होते हैं और एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रन करते हैं। दे रन इन अ ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होती है इनके, नॉर्थ टू साउथ। दे आर स्पेस्ड farthest apart at the equator and come together to a point at the poles। पोल्स पर जाकर, इक्वेटर पर इनके बीच में स्पेस होती है और पोल्स पर एक पॉइंट पर जाकर ये आपस में मिल जाते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपस में एक दूसरे को कट करती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। The word meridians comes from Latin word meridis, which means midday. It is from the word meridian that we get words such as antemeridian, that is AM meaning before noon, and the postmeridian PM meaning afternoon। ये मेरिडीज वर्ड से, लेटिन वर्ड से मेरिडियन वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है मिड डे, जिससे हम जो AM PM हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए वो वहीं से डिस्क्राइब हुए हैं। ओके, नाउ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम यूज़ करके कैसे प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। Latitudes and longitude help us to know the exact location of a place on the globe or map as well as on the earth. Knowing any of the two will not be of any use. This is because the latitudes and the longitudes form a network on the globe called a grid. The grid helps to locate place on a globe or map. The point at which the longitude and the latitude cross each other is the location of that place. To locate a place, we need to know both the latitude and the longitude of a place. For example, the location of Delhi is 29 degree north and 77 degree east. It means that 29 degree north, that means 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर आपकी दिल्ली की लोकेशन है। ओके, तो कैसे हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, अगर हमें वहाँ का लैटिट्यूड पता है और लॉन्गिट्यूड पता है, जहाँ पर भी वो दोनों पॉइंट कट होते हैं वो उस जगह की क्या होती है, उस जगह की लोकेशन होती है। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Our earth is round in shape like an orange. A globe is a model of the earth. अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, एक ऑरेंज जैसी है, साइड से पोल से फ्लैट है और बाकी क्या है, स्फेरिकल है। ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है अर्थ का। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। लार्ज वाटर बॉडीज को क्या कहते हैं, ओशियंस, और लैंड मासेस को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। A map is representation of the earth surface or part of it on a flat surface. मैप क्या होता है, अर्थ या उसके किसी भी पार्ट को फ्लैट सरफेस पर बनाना, ड्रॉ करना। लैंग्वेज ऑफ मैप इंक्लूड टाइटल, स्केल, डायरेक्शंस, कलर्स एंड symbols. These are the languages of a map. The ratio between the distance on the map and that on the ground is called the scale of a map. ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, स्केल ऑफ अ मैप। द फोर मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। द की ऑफ अ मैप इज कॉल्ड एन इंडेक्स। Latitudes are drawn from east to west. They are also called parallels. लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन होती हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं और इन लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस।
The latitude at 0 degree is called the equator. The equator is the largest parallel. It divides the earth into two equal hemispheres, that is northern hemisphere and southern hemisphere. The latitude at 0 degree is called the equator. और equator क्या है? largest parallel है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, that is northern hemisphere and southern hemisphere. The longitude at 0 degree is called the prime meridian. और prime meridian जो है वो central meridian होता है सारे meridians का. कहाँ से पास आउट करता है ये? ग्रीनविच, लंदन से. The latitudes and the longitudes form a network on the globe called a grid. ग्लोब पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं वो एक जाल बना देती हैं, एक नेटवर्क बना देती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रिड. Latitudes and longitudes help to locate places on a map or globe. Latitude और longitude से हम किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को मैप पर लोकेट कर सकते हैं. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.